Dr. Ansar sir, and all the trainees present over here. I, Akif Zafar, PhD from Genetics and Plant Breeding, I welcome you all in this training session. That's our visit to this MLRI unit. So, Dr. Ansar sir, who is an associate professor from agronomy, and presently he is here in charge of this vermicomposting unit. So we are lucky enough today to get a demonstration from the sir today, and he will be deliberating some technicalities about the vermicomposting here. So sir, kindly. I am Dr. Ansar Haq. I am working here since 2019, and I am looking this fodder production and conservation part besides this vermicompost. Let me give you a brief about this MLRI. MLRI was established in 1982 with the objective to evaluate the production potential of the exotic Jersey breed under our environmental conditions. Besides, it is an experimental learning unit for our graduate and postgraduate veterinary students. MLRI basically have currently 680 canals of land, out of which 400 canals were utilized for this agriculture production and conservation. And in agriculture, 400 canals we have distributed into three major blocks. One for seasonal crops. Seasonal crops means annual crops. Annual fodder crops, maize, sorghum, bajra, cowpea, soybean, oats, in 250 canals. And in 50 canals, we have established a permanent pasture block where we have grown all the these perennial fodder grasses, temperate fodder grasses, and rest 100 canals for deferred grazing, rotational grazing into 5 major blocks. We are conserving here the fodder for 6 months. Our lean period is here for 6 months, where harsh winters are there, we have no available greens. So we preserve fodder for 6 months in the form of silage and hay. And in addition to that, we have a very good this feed processing plant where we procure different feed ingredients and make our customized feed as per the requirement of our animals. Different customized feed like calf feed, milch animal feed, or mesh type, concentrate type. In addition to that, MLRI have this milk processing plant where we pasteurize milk and sell in the name of this Shalimar milk. And we have 125 approximately 125 animal stock with 3 breeds. Major is our Jersey breed and Cross Jersey and Hollister. In addition to that, we have this economically viable unit, vermicompost unit. वर्मी यूनिट में बेसिकली हमारे पास 148 पिट्स है, 148 पिट्स, ईच पिट हैविंग द डायमेंशन ऑफ 6 फीट, 4 फीट एंड 2 फीट डेप्थ. ये जो पिट है इसमें हम 7 क्विंटल्स ऑफ रॉ हम इसमें एडजस्ट करते हैं. जो 7 क्विंटल्स ऑफ रॉ जो हमारा है उसमें 1:1 रेशियो ट्रैश एंड 1 डंग. इन जब इसमें आप आसिफ सर ने बोला अभी कि इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर भी हैं, तो जिनके पास एक्सेस डंग नहीं होगा, सरप्लस डंग नहीं होगा, वो 1:1 रेशियो जा सकते हैं. लेकिन हमारे पास तो अपना रॉ मटेरियल है, डंग अपना है. हम 30% फार्म वेस्ट, जो भी फार्म वेस्ट है, और 70% हमारा अपना डंग है. ये 148 फीट है, उनका डायमेंशन है 6 फीट लेंथ, 4 फीट विड्थ एंड 2 फीट डेप्थ.
इसमें हमारा अकोमोडेट होता है 7 क्विंटल्स, और इस 7 क्विंटल्स में से हमारा एक साइकिल में 60 to 70%, दैट मीन्स 5 क्विंटल्स हमारा इसका कंपोस्ट निकलता है एक साइकिल में। तो हमारे यहाँ 4 साइकिल्स होते हैं। तो इस यूनिट में अभी फर्स्ट एक साइकिल में हमारा 500 to 600 क्विंटल्स निकलता है, और 4 साइकिल्स में मिनिमम हमारा 2000 क्विंटल तक जाता है, और पर क्विंटल हमारा रेट है 1500, और इसका टोटल टर्नओवर जो इस यूनिट का है मोर देन 30 lakhs, जिसमें हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया है कि अगर हम 1 kg वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, 1 kg वर्मी कंपोस्ट में अगर हमारा डंग है, अगर हम ये डेयरी से प्रोक्योर करके 2 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से लेंगे, वो इनपुट कॉस्ट ऐड करके हमारा प्रोसेसिंग, जिसमें हमारे बैग्स, पैकिंग बैग्स ऐड होते हैं, ये 50 kg वाले हैं, जिसमें हमारा इरिगेशन का जो मोटर का चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज, जिसमें हमारा लेबर चार्जेस, ये टोटल बन के 4.30 रुपीज़ पर केजी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट इसमें होता है। अगर हम अपना डंग प्रोक्योर करेंगे तो 4.30 रुपीज़ पर केजी हमारा इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बनता है, और हमारा ये 50 रुपये में बिकता है। दैट मीन्स वी हैव BC रेशियो ऑफ 1:4। अगर हम 1 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो हम 4 रुपये अर्न करेंगे। तो इस वर्मी कंपोस्ट यूनिट में हमारा इनपुट कॉस्ट पूरा लेबर सारा मिला के 7 to 8 लाख हमारा पर साल में जाता है, और इसका हमारा रेवेन्यू नेट प्रॉफिट अबाउट 20 लाख आता है, जो हमारा पूरा रॉ मटेरियल अपना निकलता है। तो इसमें हमारा अगर जो हमारे एनिमल्स है, हमारे एनिमल्स यहाँ जर्सी और HF है, उनकी बॉडी जो HF है बॉडी बड़ी होती है, तो उनका एवरेज हमारा 11 to 12 kg पर डे डंग निकलता है। तो अगर हमारे पास अभी 100 एनिमल्स है, तो हमारा इसमें पॉसिबिलिटी है कि हम उसको और एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो बचता है वो हम फील्ड में एज मैन्यूअल इस्तेमाल करते हैं। अगर हम 100% वर्मी कंपोस्ट पे जाएंगे तो हमारा 3000 क्विंटल्स तक कैपेसिटी है, जो हमारा अपना रॉ मटेरियल है। तो इसमें जो आशिफ सर ने बोला कुछ एंटरप्रेन्योर है, तो जब हमें कोई वर्मी कंपोस्ट स्टार्ट करना होगा तो हमें पहले देखना है कि हमारे पास अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, कितना अवेलेबल है, उसी हिसाब से हमें स्टार्ट करना है स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 यूनिट एनिमल, एक चीज़ मैं भूल ही गया कि अगर अपना डेयरी फार्म है तो ये 1:4 रेशियो, 1 रुपये इन्वेस्ट करके आपका 4 रुपये बनेगा। अगर आपको प्रोक्योर करना है, प्रोक्योर में लिमिटेशन है, डंग अवेलेबल नहीं है मार्केट में, वो एक लिमिटेशन उसकी है, तो फिर भी आपका 50-50, तो 7 to 8 रुपीज़ खर्चा लगेगा, 50 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ये मोस्ट प्रॉफिटेबल यूनिट है जहाँ डेयरी है, क्योंकि एक एनिमल पर मंथ हमारा 3 क्विंटल डंग प्रोड्यूस करता है। तो एक साल में वो 36 क्विंटल्स डंग प्रोड्यूस करेगा। 36 क्विंटल्स में से अगर हम 70% देखेंगे, वो मोर देन 20 क्विंटल्स उसमें वर्मी कंपोस्ट बन गया। 20 क्विंटल्स मीन्स 30,000 रुपीज़ एक एनिमल से हम वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो अगर आप लोगों को साल का है, एक साल का, यस, एक एनिमल एक मंथ में 3 क्विंटल एक डंग निकलता है, तो एक साल में उसके 36 क्विंटल निकलेंगे। 36 क्विंटल में से अगर 70% हम करेंगे, 23-24 क्विंटल उसका वर्मी कंपोस्ट बनेगा। दैट कॉस्ट मोर देन 30,000 रुपीज़। तो एक एनिमल से हम 30,000 रुपीज़ वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। तो अगर इसमें कोई डेयरी, जिनका घर में डेयरी हो, 1 एनिमल हो, 1 एनिमल हो, 2 एनिमल हो, या 5 यूनिट डेयरी कैटल फार्म हो, तो वो मंथली एनुअली 100 to 200 क्विंटल्स वर्मी कंपोस्ट के लिए एक स्ट्रक्चर बना सकता है। जो 200 क्विंटल्स के लिए आपको 10 फीट चाहिए। 200 to 300 क्विंटल्स के लिए ये जो हमारा स्टैंडर्ड डायमेंशन है, 6 फीट, 4 फीट और 2 फीट, ये आप 10 फीट्स बना के 200 to 300 क्विंटल्स एनुअली वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, अगर आपके पास 5 यूनिट या 7 यूनिट या 8 यूनिट कैटल होगा। इन केस आपके पास नहीं होगा, आप फिर 1:1 ट्रैश प्लस डंग इस्तेमाल कर, जो नियर बाई डेयरी फार्म होगा, या विलेजेस में 1-1, 2-2 गाय हर एक के पास होते हैं, तो बाहर से
वो प्रोक्योर करके ले सकते हैं। लेकिन स्टार्ट में हमें देखना है कि 200 to 300 वर्मी कंपोस्ट प्रोड्यूस करने के लिए हमें मिनिमम 10 पिट्स की ज़रूरत है। जब स्टार्ट से हम 300 क्विंटल्स मीन्स 4.5 लाख 4.5 लाख एनुअली अगर हम स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए हमें 10 पिट्स का स्ट्रक्चर बनाना है। 10 पिट्स स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें 50,000 पूरा कैपिटल कॉस्ट इसमें लगता है, जिसमें अगर हम स्टार्ट करेंगे, कंक्रीट बनाएंगे, छत बनाएंगे, 10 फीट के लिए हमें 50,000 से स्टार्ट करना है जब हमारा कैपिटल कॉस्ट बनेगा। कैपिटल कॉस्ट के लिए ये वन टाइम है। उसके बाद आपको सिर्फ रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल अगर आपके पास नियर बाय अवेलेबल हो या आप प्रोक्योर करेंगे या अपना होगा, तो अभी हम दिखाएंगे कि हम कैसे पहले बाहर जमा करते हैं। 10-15 दिन जो गैसेस वेसेस निकलते हैं, फिर यहाँ लाते हैं, फिर उसमें कल्चर डालते हैं, फिर टर्निंग करते हैं, क्योंकि इसमें जो ये एरोबिक ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि वर्म्स को जब तक एरिएशन नहीं होगी, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, जब तक मॉइस्चर नहीं होगा, ये सर्वाइव नहीं करेंगे, ये आपको माइग्रेट हो जाएंगे। इसीलिए हमने डेप्थ 2 फीट रखी है। अगर हम जितना हम डीप जाएंगे ना, उतने वर्म्स माइग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि नीचे कंपैक्शन होगा, एरिएशन नहीं हो जाएगी, तो वर्म्स ऊपर से काम करके वहाँ से निकल जाएंगे। और नीचे जब हम टर्न करते हैं, हमारा हाथ नीचे तक जाता है। जितना हम डीप जाएंगे उतना हमारा टर्न नहीं होगा। इसमें 2-3 कंडीशंस आपने पढ़ा होगा, आपने उन दिनों में सीखा होगा कि वो हम यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है कि उसमें रॉ मटेरियल क्या लगता है, उसमें हम कहाँ स्टार्ट करेंगे, उसके लिए प्लेस कहाँ होनी चाहिए। हमें जो आपने सीखा है उसमें आपको देखना, आपको कहाँ डाउट है, आपको कितना किसमें रॉ मटेरियल किसके पास कितना है, वो कितने से स्टार्ट करेगा, वो क्लियर हम करेंगे। और उसमें वर्म्स हमारा जो है, ये 1 फीट में 64x2 में हमारा 2 kg वर्म्स लगते हैं। 2 kg मीन्स 2000 to 3000 वर्म्स, और ये एक साइकिल में डबल हो जाते हैं अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी। और हमारा कल्चर जो है ये 800 रुपीज़ पर kg यहाँ बिकता है। दैट मीन्स 1600 रुपीज़ एक फीट में डाल के एक साइकिल में ये 3200 रुपीज़ देते हैं। 4 साइकिल में ये एडिशनल इनकम है इसका। तो पूरा कैलकुलेट करके हमने ये कॉस्ट निकाल के, जितना भी लेबर वेबर सब खर्चा करके, तो इसमें हमारा 1 रुपये इन्वेस्ट करके हमारा 4 रुपये हम उसमें अर्न कर सकते हैं। और ये यूनिट जो है, ये पूरा जो यूनिवर्सिटी के यूनिट्स हैं हमारे लद्दाख में या वैली में, ये उनके प्रोग्रेसिव फार्मर्स अभी जो ऑर्चर्ड नए हाई डेंसिटी है उनमें रिकमेंड करते हैं। हमारी इतनी डिमांड है कि हम सबको सप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो मेजर 50% हमारा यूनिवर्सिटी जो कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स है उनमें जाता है, और डिस्ट्रिक्ट शोपियान, पुलवामा, बारामूला, तो वहाँ से हमारी डिमांड आती है। तो हम साल में 2000 क्विंटल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगर ये गवर्नमेंट में होगा इतना बड़ा, प्राइवेट में होगा, क्योंकि हमारा लेबर इशू होता है, बाकी इश्यूज होते हैं, तो इसमें कैपेसिटी है हमारा, हम 5 साइकिल भी जा सकते हैं। लेकिन एक लिमिटेशन है वर्मी कंपोस्ट में, क्योंकि ये नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं। वी कैन नॉट रिड्यूस द प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन टाइम हम रिड्यूस नहीं कर सकते। ये एक मेन लिमिटेशन है उसमें, क्योंकि अभी पिछली बार यहाँ डीसी साहब आए हैं, बोला कि ये फार्मर आपको 2 महीने कहाँ वेट करेगा, ये 10 दिन में तैयार हो। ये नेचुरली प्रोड्यूस करते हैं, उसमें हम कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर विंटर में हमारा अगर कंट्रोल कंडीशन होगा, बाहर से उसमें पॉलीथीन लगा होगा, टेम्परेचर उसमें अप टू 35 डिग्री ऑप्टिमम है, 18 to 35 डिग्री, या मॉइस्चर उसमें 30-40%, अगर वो कंडीशन फेवरेबल होंगे तो हम 5 साइकिल्स तक जा सकते हैं। उससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते, क्योंकि 2 महीने तक उसको अगर हम 1-2 kg उसमें वर्म्स डालते हैं, ये पर डे 1 kg वर्म्स 5 kg कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें एक टाइम है, तो वो एक लिमिटेशन है। अदरवाइज ये वर्मी कंपोस्ट है, ये एनवायरमेंटली हमारा फ्रेंडली है। ये हमारे ऑल एसेंशियल जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रेंट्स है, अभी हमारा केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे, नाइट्रोजन डालेंगे, यूरिया डालेंगे, वो एक ही एलिमेंट देगा, फास्फोरस डीएपी डालेंगे वो 2 एलिमेंट देगा, या म्यूरेट ऑफ पोटाश वो एलिमेंट 1 देगा। ये हमारा पूरा जो भी एसेंशियल मैक्रो माइक्रो एलिमेंट्स है वो इनसे हमें मिलते हैं। और ये जो रिड्यूस करता है टॉक्सिक मेटल्स इन द सॉइल, इकोनॉमिकली ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, और लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। ये हम कहीं भी इंडोर भी कर सकते हैं, आउटडोर भी कर सकते हैं, और साल में किसी भी टाइम हम ये
इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। क्योंकि आपने देखा है जो भी अभी एप्पल यहाँ ग्रो करते हैं वो पिछले 2-3 साल से लगाते हैं, उनका एप्पल साइज़ अच्छा होता है, एप्पल क्वालिटी अच्छी होती है, उनकी डिजीज़ रेजिस्टेंस उसमें बढ़ती है। लेकिन हम स्मॉल स्केल पे जो रूरल एरियाज है वो घर में स्टार्ट, एक किचन गार्डनिंग होता है, कम से कम एक घर में जो भी हमारा डस्ट है पूरा अंदर का जो डस्ट है दिमाग में सोच के बाहर डस्टबिन रखा है, बाहर हम बना सकते हैं सिंपली। अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं बनाएंगे तो कंपोस्ट बना सकते हैं हम। कंपोस्ट के लिए हमें बाहर एक गड्ढा खोलना है, अंदर जो भी डस्ट निकलता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल है वो उसमें डाल के सेग्रीगेट करना है, 2-3 डस्टबिन पॉलिथीन अलग में रखना है, बाकी पूरा उसमें हम कर सकते हैं अगर हम इंटरेस्टेड हैं तो। बाकी अगर किसी को कुछ भी डाउट हो वो क्लियर करे यहाँ, क्योंकि ये डिमॉन्स्ट्रेशन आपको, हमारा जो वैली में सबसे बड़ा यूनिट यही है जहाँ हम वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इसमें आपको अभी पार्शियली जो डिकम्पोज हुआ वो भी मिलेगा, जो अभी तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए वो भी मिलेगा, अभी जो आपका रॉ है वो भी मिलेगा। अभी आपको जो अभी आप देखेंगे कि हम पैकिंग कैसे करते हैं, हम स्टिचिंग कैसे करते हैं, और हम अभी इनसे मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि उनने ये डिफ्रेंशिएट किया कंपोस्ट कौन है और वर्मी कंपोस्ट कौन है। यहाँ बाहर उसने बोला ये क्या है सर, मैंने बोला ये कंपोस्ट है, ये दोनों डिस्कस कर रहे थे, ये उनको बोल रहे थे ये कंपोस्ट है, ये वर्मी कंपोस्ट नहीं है। ये आपको ये ट्रेनिंग करके डिफ्रेंशिएट आप कर सकते होंगे कि ये कंपोस्ट है या ये वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करेंगे, और कंपोस्ट ये बेसिकली एनरिच करते हैं हम, कंपोस्ट उसकी क्वालिटी बढ़ाते हैं हम। बाकी आज वो हम सोच रहे थे कि वर्मी वॉश हम वर्मी वॉश कर सकते हैं। सर हमारे पास है एक छोटा सा यूनिट है, हमने बेसिकली इस इंटेंशन से इनको यहाँ लाया था सो दैट दे विल गेट मोटिवेटेड टू दिस टेक्नोलॉजी। इनको मैंने अपने उस अभी हमने डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया, तो आपने इनको अच्छे से यहाँ पे जो है बोला है, तो इसलिए हमने लाया था सो दैट दे आर अट्रैक्टेड टू दिस टेक्नोलॉजी। वंस दे फिनिश दिस ट्रेनिंग कोर्स दे विल रेप्लिकेट दिस आइडिया। तो मुझे लगता है इसमें सर ने बोला आपको अगर कहीं पे भी कुछ कन्फ्यूजन होगा तो वैली में इससे ज़्यादा बड़ा यूनिट कहीं नहीं मिलेगा। आप देखें ना इसमें कोई वो हाई कॉस्ट वो स्ट्रक्चर है नहीं, हाई टेक। आप देखो इसमें टीन लगा है और ये लकड़ी का शेड बना है, यहाँ से इसमें ट्रैक्टर भी जाता है लोडिंग अनलोडिंग के लिए, है ना। फिर देखो कवर्ड है, इसने मल्च किया है ये जो है ना बेग्स ऊपर से, मॉइस्चर कंजर्वेशन और आज टेम्परेचर का थोड़ा इशू है तो ये है। और एक बर्ड डैमेज होता है, बर्ड डैमेज भी होता है। और सर आई वुड लाइक टू ऐड, आपने थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस नाइस लेक्चर। तो इसमें एक चीज़ मैं इनको बोल रहा था, एक एग्जांपल, वी हैड वन फार्मर इन एमपी, हम रिफ्रेशर पे थे तो हम गए थे, हालांकि शेख बिलाल साहब ने भी बोला था हमें, तो उसने क्या किया, ही वाज लाइक कि वी आर प्रोड्यूसिंग दिस वर्मी कंपोस्ट विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 days। आई टोल्ड हिम हाउ। उसने बोला हमारे पास एक वो काउ डंग डाइजेस्टर है, ट्रैक्टर को पीछे लगा के जो पार्शियली डिकम्पोज्ड लाते हैं उसको चलाते हैं ये, तो वो इसको थोड़ा वो ग्राइंड करता है। जब ग्राइंड किया तो वर्म उसको ऑटोमेटिकली सपोर्ट होता है, मतलब जो उनको खाना है वो उसको जल्दी ही कन्वर्ट करते हैं। देन वी हैड वन मोर सक्स, वो इस पे आया था क्या बोलते हैं कृषि दर्शन पे, तो प्रोबेबली ही वाज फ्रॉम पंजाब, क्योंकि ये सबसे बड़ा बिजनेस, मैंने आपको बोला ना, मैंने ये भी बोला था आई विल नेवर एनकरेज यू पीपल फॉर बायोपेस्टिसाइड और एनी माइक्रो, क्योंकि इफ़ यू सी द रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म इट्स वेरी टफ। तो इसमें जो है उन्होंने बोला था कि मैं साल का 30 करोड़ या कुछ 25 करोड़ का वो निकाल रहा है, एंड दैट प्रोग्रेसिव फार्मर इज सप्लाइंग दैट कंपोस्ट टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो काफ़ी पैसा है एंड ही इज़ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू नंबर ऑफ पीपल, तो जॉब प्रोवाइडर बन गया ओवरनाइट, है ना। तो आप इस वक्त देख लेंगे, मतलब जो आप वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं प्री डिकम्पोज्ड या वहाँ कैटल शेड से हम निकाल रहे हैं इसको, फिर सर ने बोला कि हम कहीं पे इसको जमा कर रहे हैं, वी कीप इट देयर फॉर 21 days पीरियड, दैट इज प्री डिकम्पोजिशन, थोड़ा सट जाता है और पानी भी निकलता है और मीथेन गैस भी निकल जाता है बाय द वे। तो उसके बाद हम कैसे शिफ्ट करते हैं, फिर हम कैसे इसको टर्न करते हैं। अगर पानी की ज़रूरत है, इफ बाय द वे द मॉइस्चर इज डेफिशिएंट, हम कैसे इसको करेंगे,
ऐसा नहीं है कि आप पाइप इसमें घुसाएंगे देन यू विल गो फॉर फ्लडिंग. अगर एक्सेस मॉइस्चर है देन अगेन योर दिस एलीट वर्मी कल्चर विल फेल. जो अर्थवर्म्स है ना इसमें वो फेल हो जाएंगे. अगर डेफिशिएंट है दे विल डाई बिकॉज वी बिलीव कि दे एक्चुअली टेक द एयर थ्रू देयर स्किन. जो रेस्पिरेशन होता है एज साइंस स्टूडेंट्स आपको पता ही है. सो वन हैज टू बी वेरी कॉशियस. मॉइस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. अगर इनको टेम्परेचर अच्छा मिलता है तो ये स्पीड अप हो सकता है ना. फिर हम कैसे टर्निंग करते हैं, फिर हम इसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं, व्हाट कुड बी द सीड साइज वो भी दिखाएंगे हमें आज यहाँ पे. उसके बाद अगर इसको पैक करना है कैसे करेंगे. यहाँ सर बोल रहे थे कि अगर आपने भेजना है कहीं पे मतलब यू वांट टू इफ यू हैव द इंटेंशन दैट यू आर ट्राइंग टू सेल इट यू वांट टू गो फॉर कमर्शियल पर्पस है ना. दूसरा होता है कि यू विल प्रोड्यूस इट फॉर योर ओन पर्पस. सॉरी. तो वो भी आपने देखना है कि व्हाट कुड बी द साइज ऑफ पिट दिस यूनिट है ना. तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल क्या होगा, तो कैसे इसको पैक करेंगे उस पर भी थोड़ा हम सीखेंगे आज. ठीक है. अत थोड़ा चीर अत नी पे बम से नबर हम ना 5-7 मज. तो जो अभी आपने लेक्चर में सुना होगा तो ये अभी आप देखो कैसे हो रहा है सीविंग ना. सर इसका क्या है सीव. इसमें सीव 2 to 3 mm होना चाहिए. जैसे कि इसमें कोकून है और कोकून और जो अनडिकम्पोज्ड है वो सेपरेट हो जाएगा. वो हम फिर रीयूज करते हैं. जो पार्शियली हमने पिट निकाले होंगे उसमें फिर से ये डाल देते हैं. ऑलरेडी कोकून्स होते हैं. लेकिन अगर सीव बड़ी होगी तो कोकून उसमें सेपरेट नहीं हो जाएंगे. तो उससे क्या होगा, आगे हमारा जो कल्चर है वो रिड्यूस हो जाएगा, हमारा कल्चर ख़त्म हो जाएगा. तो इसलिए 2 to 3 mm इसमें हमारा सीविंग साइज होता है. कंपैक्टनेस आ जाती है ना. आ जाती है. वो पास नहीं होता प्रॉब्लम है, होती है. सीविंग से पास नहीं होती है. समझ गए. सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट. देखो चाय जैसा कलर हो जाता है इसमें. तो इसमें आपका डार्क ग्रीन और सॉफ्ट आपका दिखेगा, ग्रेन्यूलर दिखेगा, सॉफ्ट दिखेगा. और 1 महीने बाद आप जब भी आज की आप सर को ज़्यादा इसमें ये इसी फील्ड के हैं, अगर हम आज उसका सैंपल लेके हम उसका न्यूट्रेंट स्टेटस चेक करेंगे 1 महीना बाद यही न्यूट्रेंट स्टेटस, उसमें न्यूट्रेंट लॉस नहीं होते. सही बात है. ये वर्मी कंपोस्ट में एक क्वालिटी है. अभी देखो हमने बोला था मतलब अगर पॉसिबल है यूज इट फ्रेश. यूज इट फ्रेश है ना, उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है. अब हमने ये भी बोला था देखो ये जो है ना आपका कंपोस्ट देखो टच करने में कितना मतलब इसका सूदिंग कितना सॉफ्ट लग रहा है. बहुत अच्छा है ये है ना. आपका नहीं जो आपका अर्थवर्म का एंजाइमेटिक सेटअप है, हमने बोला था जो माइक्रोबायोम होता है गट का वो भी इसमें ऐड होता है. यानी कि बिसाइड्स दिस माइक्रो एंड क्या बोलते हैं प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स which are actually required by the plant, there are actually some PGPR strands also in this क्या बोलते हैं इस वर्मी कंपोस्ट में, और एंजाइम्स भी होते हैं. सो दिस बिकम्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है ना. अगर हम इसी चीज को सपोज सर ने यहाँ पे बोला हमें कि 15 रुपये बिक रहा है, 15 रुपये. दिस इज नॉर्मल वर्मी कंपोस्ट नॉट कंपोस्ट है ना. क्योंकि यू आर टेकिंग हेल्प फ्रॉम अर्थवर्म. सर शायद उस पर बोलेंगे अभी ये अर्थवर्म कौन सी हम यूज कर रहे हैं ना, तो उस पर सर बोलेंगे. अगर हम इसी को थोड़ा वैल्यू एडिशन फर्दर करेंगे, हम इसको बायोफोर्टिफिकेशन करेंगे. सपोज आपके पास नाइट्रोजन फिक्सर्स, आपके पास पी सॉल्युबलाइजर है पोटेशियम वगैरह. पोटेशियम इज देयर इन द सॉइल एंड फॉस्फोरस इज देयर, बट अनफॉर्चुनेटली इट इज नॉट अवेलेबल टू द प्लांट. व्हाट वी डू nowadays is we make them or prepare them artificially inside biofertilizer plants or biopesticide जो भी plant होते हैं. Then we inoculate that culture with this vermi compost. It becomes a very strong product जिसको आप बोलते हैं biofortified vermi compost. फिर इसी vermi compost को वो strands add करके you can sell this product at the rate of 20 rupees per kg. ये value addition कर दिया हमने. If I am right sir, है ना. तो हमारे यहाँ वाडोरा में we are taking help from Icina foetida red worm. Because that is a very efficient worker. इसको खाद we need which is very fast. किसमें
खाने में ना मना वोरेशियस फीडर के साथ तो वो ज़्यादा खाता है। हमारे पास सर एक अपनी भी है, बट दैट इज़ इनएफिशिएंट इन ए वे बिकॉज दैट once we are actually taking help, मतलब we try to take help from that species, वो जाता है hibernation में, that's a deep burrower, Yes. तो वो soil में चला जाता है, although that is helping us in soil aeration and all that, but that is of no use in this vermicomposting. तो हम इसमें ज़्यादा इसी फीटिडा यूज़ करते हैं। सर इसमें और कोई स्पीशीज आप यूज़ करते हैं? नहीं, सिर्फ ये रेड वर्मी सीना फिटिडा जिससे हमने बनवाया है, लेकिन ये मैनुअल है अभी, इसकी एफिशिएंसी है 5 क्विंटल्स पर आवर। तो अभी हम उनको बोल रहे हैं कि हमें ये मोटराइज, क्योंकि लेबर कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमें मोटराइज दे दो जिसकी एफिशिएंसी भी बड़ी होगी। और इसका सील साइज स्टैंडर्ड सील साइज है, इसमें कुछ पास नहीं होंगे, इसमें जो भी अनडिकम्पोज्ड है वो पास नहीं होगा। तो ये हम दिस इज अल्टीमेट भाई। ये देखो ना, जिसको हम चाय बोलते हैं, चाय एक्चुअली चाय। इसको देखो क्या नाम है, इसको अच्छा तो वो तो मज़ीद बन जाएगा मेरा है। सर हमारे पास वाडूरे में ये नहीं है, एक्चुअली प्लानिंग हमने रिक्वेशन दिया है तो, लेकिन हमारे पास काउट एंड डाइजेस्टर है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी डिफंगी है, हम कर रहे हैं अभी कोशिश, लेकिन एनकरेज एक्चुअली हम हुए हैं इसी यूनिट से, है ना सर। अगर हम इसको मोटर बेसिस बनाएंगे ये कितने में हमें मिलेगा? ये मोटर बेस पे 20,000 मिल गया। हमने उनसे बात की है कि इसमें मोटर का कॉस्ट 5-6,000 होगा और ये 12,000 का होगा, तो मैक्सिमम ये 20,000 में हो जाएगा। 20,000 तो हम समझाएंगे वहाँ पे। दैट इज सेलिंग एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ पर लीटर, ठीक है, हो गए 2 प्रोडक्ट। तीसरा जो है जो एलीट वर्मी कल्चर हमारे पास है सर, यहाँ पे मतलब इट वाज अ न्यूज़ टू मी, यहाँ पे ये बहुत लो रेट पे बेच रहे हैं। आपने सर बोला ना 100 रुपए, 800। अच्छा 800, ओह आई वाज प्रैक्टिकली फैंट। मैंने सोचा कि अब मैं जेल जाऊंगा क्योंकि हम बेचते हैं वहाँ पे 800 रुपये, है ना, 800 रुपीज़, 800 रुपीज़, 100 रुपी पर लीटर एंड 15 रुपी पर केजी, सो 3 प्रोडक्ट्स यू आर एक्चुअली गेटिंग, है ना। तो इस पे आप सोचिए, आप मुझे बताइए कि कौन कौन इस टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस है। यू जस्ट रेज योर हैंड्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। आप इसको घर में करेंगे बिकॉज जो फंडिंग एजेंसी जो है उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया है that we are actually through this training program we are actually going to create some second generation entrepreneurs who are very successful. From my side and from my university side we would be providing guidance and expertise free of cost. जहाँ पे भी आपकी लोकेशन होगी, मैंने कल भी बोला था गाड़ी में हम अपने जेब से पेट्रोल डालेंगे तो हम आपके पास आएंगे, बट यू हैव टू डू इट। वो समय रखिएगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है ना, या इस बेड पे पॉलीथीन लगा के, चलो एक हो रहा है नीचे से, यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी सेविंग कर सकते हैं ये लोग, है ना सर। हमारे पास जो है दैट इज अ स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन यूनिट, सो वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू मोटिवेट यूथ लाइक दीज क्वालिफाइड ग्रेजुएट्स। तो हमारे पास जो यूनिट है उसमें शायद 11 पिट्स है, तो उसका लेंथ जो है वो 11 फीट है और विड्थ जो इसका है 2 फीट हमने रखा है। तो उसका जो हाइट है हमने रेज्ड किया है। यहाँ पे थोड़ा ये क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे, संकन बेड इसको बोलेंगे, डाउन में ही है, हाँ बिलो ग्राउंड है, तो वो आप अबव ग्राउंड होगा। हाँ, तो हमने वहाँ पे रखा है जस्ट 9 इंच, दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेशन क्या बोलते हैं यूनिट। तो उसमें हमने एक चीज़ किया है, तो जो हमने रेज किया है, रेज में अगर एक्सेस, चलो कोई लेबर आ जाता है या कोई बंदा आ जाता है, उसको ज़्यादा ये टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ही गोज फॉर फ्लडिंग, जो पानी निकलता है ना वो इसमें अगर जमा हो जाएगा, हमने वहाँ पे एक पॉइंट रखा है जहाँ से ये पानी निकलता है, वो फिर एक ड्रेन से कनेक्ट होता है, फिर हम उसको भी वहाँ आगे कलेक्ट करते हैं एज लिक्विड, वर्मी वाश बन जाता है। इसमें सर हमने ये 2 फीट डेप्थ है, बिल्कुल। तो अभी जो तैयार होगा ये सरफेस डिकम्पोजर तैयार होता है, बिल्कुल। नीचे 1 फीट बचता है उसमें पूरा कल्चर होता है, हम तो फिर जो बाहर से डिकम्पोज होगा वो उसमें ऐड करते हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है, हम पूरा हार्वेस्ट नहीं करते हैं फिर नया डालते हैं, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। और हमने एक चीज़ किया है,
हम अल्टरनेट इसमें डालते हैं, इसमें फ्रेश डालेंगे। जो वर्म्स यहाँ है वो खुद वहाँ बीच में होल्स रखे हैं, ये माइग्रेट हो जाते हैं, माइग्रेट हो जाते हैं, है ना। तो उसमें हमें लेबर बचता है, क्योंकि हमें सीविंग करके 10% वर्म निकलेंगे, जो बाकी वर्म्स है वो खुद ही माइग्रेट हो जाते हैं जब उनका फ्रेश मिलता है। सर व्हाट अबाउट विंटर्स? विंटर्स में आप क्या करते हैं? क्योंकि वी हैव टू सेव दिस, प्रिजर्व दिस वर्मी कल्चर, तो इसमें कोई बेडिंग मटेरियल आप चेंज करते हैं? विंटर्स में हम कुछ 5 या 10 बेड ऐसे रखते हैं जिसको हम प्रिजर्व करते हैं, जहाँ ऊपर पॉलिथीन रखते हैं, बिल्कुल। पानी कम डालते हैं। बाकी अगर कुछ रूम अवेलेबल होगा जहाँ हम 2-4 ट्रेज में रखेंगे, क्योंकि टेम्परेचर उसमें मेन जो है कि टेम्परेचर अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा या बिलो 15 डिग्री होगा तो ये सर्वाइव नहीं करते हैं। लेकिन विंटर्स में भी अगर हम नीचे जाएंगे टेम्परेचर उसमें अबाउट 20 रहता है। और इसमें मैं आई वुड लाइक टू ऐड, हमारे पास मैंने देखा है विंटर में देयर वाज अ हैवी कैजुअलिटी इन द बिगनिंग ऑफ दिस Yes. तो वी गॉट फोन कॉल्स फ्रॉम मेनी प्रोग्रेसिव फार्मर हु आर एक्चुअली डूइंग विद दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइज। तो उसमें थोड़ा शॉक हो गया था, सॉइल का टेम्परेचर ऑल ऑफ ए सडन जो है उसमें वो हो गया था, क्या बोलते हैं, डाउन हो गया था। तो ऐसी एक शॉक आया था केरला में, वहाँ पे भी काफ़ी वर्म्स का डैमेज हो गया था। तो हम क्या करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास एक हॉर्टिकल्चर का एक ये प्लांट है डबगांव में, उसमें वो एप्पल पोमेस होता है ना, जूस प्लांट, वो थोड़ा उसको काट के, यू कैन आल्सो सर ऐड दैट एक लायर, इसको उठा के, इस लायर को आप उठा सकते हैं, देन यू कैन ऐड दैट एप्पल पोमेस। वो गर्म रहता है, उसकी प्रॉपर्टी ये है, तो उसका हीटिंग इफेक्ट है, वो रहता है गर्म। ये फिर उसमें कॉइलिंग करके उसमें बैठ जाते हैं। या इवन यू कैन गो फॉर, जो हमारे पास ये आता है ना सर, ये सिड्रा आता है ना, खासकर जो बीन्स का है, उसका भी एक लायर बना के बेड बना सकते हैं आप लोग। नंबर 1। नंबर 2 इज, हमने सर ने आपको समझाया कि ये एक ऐसा इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है ज्यूरिंग कंपोस्टिंग। जैसे नॉर्मल कंपोस्टिंग में आप देखेंगे उसमें काफ़ी स्मेल आ रहा है, लेकिन इसमें ज़्यादा स्मेल। यू कैन कैरी अ बिन इन योर बेडरूम, डोंट हेजिटेट। तो आप इसको, क्योंकि वहाँ पे तो आपका हाई फाई टेम्परेचर होता है ना, रूम टेम्परेचर होता है, यू कैन कीप बेड्स यू कैन थ्रो, तो आप इसको वहाँ पे भी मेंटेन कर सकते हैं। वह समझ, वो 30 या 35 से ऊपर चला जाता है, दैट मीन्स मॉइस्चर इज इन स्ट्रेस इटसेल्फ, है ना। तो वो यही बोरियां वगैरह जो है इसको वेट करके वो ऐसे हीप्स बनाते हैं यहाँ से लेके वहाँ तक, तो फिर ऊपर इसको कवर करते हैं। अगर मालच है घास वास तो वो भी चल सकता है, तो अदरवाइज दे कवर इट विद दीज, ये जो बोरियां हैं, तो मॉइस्चर प्रिजर्व होता है। तो ओपन में भी आप इसको समर्स में कर सकते हैं। अभी सर समर्स में हम वही मॉइस्चर प्रिजर्व करने के लिए हम ये गनी बैग्स लगाते हैं, पानी रखते हैं, तो मॉइस्चर कंजर्व होता है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ठीक यहाँ ठाक पे है, टेम्परेचर गर्मा बहुत ज़्यादा ये है, लोग ना ईद गर्म। हाँ, तो ये तो एज हम कंजर्व ये गनी बैग्स डालते हैं मॉइस्चर कंजर्व रखने के लिए, तो बर्ड डैमेज भी नहीं होता है अभी। तो समर्स में एज हीट ये कंजर्व करता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, 4 से 5 साइकिल्स आप कर पाते हैं। 4 साइकिल्स हम करते 4 साइकिल्स। तो यहाँ पर इसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है, उसकी वजह से हम 4 जाते हैं। हम तो 5 भी कर सकते हैं अगर उसमें लेबर्स का इशू नहीं होगा। Sir, thank you for this wonderful lecture. We are very thankful to you and your team and even your boss, this Dr. Hilal. Hilal sir. He is also my colleague and teacher. Sir is my senior. So thank you for arranging this lecture here. So we are concluding this. What is your message to these trainees finally? ट्रेनीज का जैसे आपने बोला है कि गवर्नमेंट इसमें बहुत स्ट्रेस दे रहा है कि हम स्टार्ट करेंगे, नए एंटरप्रेन्योर्स हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल स्केल पे ही, जहाँ पे हमारा एक तो हमारा इसमें मेन एम जो है कि वेस्ट मैनेजमेंट होता है। वेस्ट मैनेजमेंट, अभी इतना वेस्ट हमारा गार्बेज जमा हो रहा है इसमें गलियों में, कोचों में, इतना पोल्यूशन हो रहा है कि वो वेस्ट डिस्पोजल कैसे करेंगे हम। ये एक अच्छी इको फ्रेंडली और लो कास्ट टेक्निक है कि हम ये वर्मी कंपोस्टिंग कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम अर्न कर सकते हैं अपना रोज़गार, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, अर्थ वर्म प्रोडक्शन इससे हो सकता है। तो और हमारा जो किचन गार्डनिंग, खासकर जो लेडीज़ जो है घर में, चाहे रूरल हो अर्बन हो, सबके पास एक किचन गार्डनिंग है। सब हेल्थ कॉन्शियस है कि केमिकल फर्टिलाइजर्स को रिड्यूस करके हम इस ऑर्गेनिक की तरफ जाएंगे। एक हमारा क्वालिटी ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा और हमारा हेल्थ भी
इम्प्रूव होगा और सॉइल हेल्थ भी सस्टेन होगा, साथ साथ सॉइल हेल्थ भी सस्टेन होगा। तो जब भी हमारे यहाँ ग्रुप्स आते हैं, हमारी सक्सेस यही होती है कि अगर एक ही उनमें से स्टार्ट करेगा वही हमारी सक्सेस है। तो आई होप कि आप में से कुछ स्मॉल स्केल पे ही घर में ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे, अगर वर्मी कंपोस्ट नहीं कंपोस्टिंग ही स्टार्ट करना शुरू करेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल। जैसे हम स्पून अलग अलग जमा नहीं करते, ये ऑटोमेटिकली माइग्रेट होता है। अगर हम सीव करके आगे देखा होगा 0.5%, बाकी सब माइग्रेट हो जाते हैं। इसमें 7.7 इसमें पूरा ये कॉस्ट टीचिंग Very important.